अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो टॉपिक है आज का इट इज़ कैंडिडा ऑरिस। कैंडिडा ऑरिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी आज। कैंडिडा ऑरिस बेसिकली इट इज़ अ स्पीशीज ऑफ फंगस दैट grows as a yeast. It grows as a yeast. It is one of the few species of the genus Candida which cause candidiasis in human. Often candidiasis is acquired in hospitals by patient with weakened immune system. कैंडिडा हम सब जानते हैं कि मोस्ट स्पीशी ऑफ कैंडिडा आर द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, बट हम ये भी जानते हैं कि मोस्टली जो कैंडिडा है वो इम्यून सिस्टम जिन पेशेंट्स का वीक होता है उनमें डिज़ीज़ कॉज कर रहा होता है। और कैंडिडा ऑरिस जो है उसके भी बारे में जो रिसर्च है जो सामने आई है उसके अकॉर्डिंग कैंडिडा ऑरिस मोस्टली cause disease in those hospital patients who have the weakened immune system, either due to cancer or some other infection. There is some introduction about the Candida auris, that what is Candida auris is. It belongs to the kingdom fungi. According to the higher classification, it is Candida. Its scientific name is Candida auris. Its rank is the species, and the Scaromycetale is its order, and Scaromycetes its is class. Candida auris is an emerging fungus that presents a serious and the severe global health threat. According to the Center for Disease Control, the Candida auris is the third main cause of life-threatening infection. Basically, the third main cause of fungal life-threatening condition in hospitalized patient. It is often the multi-drug resistant. It is the main cause that कि ये जो है दूसरी फंगस से इसलिए भी डिफरेंट है कि ये बहुत सारी एंटी फंगल ड्रग विच आर द 3 मेन एंटी फंगल ड्रग्स वी हैव, उन सारी 3 एंटी फंगल ड्रग्स से इसकी कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जो कि रेजिस्टेंट हैं। अच्छा, और सेकंड बात ये है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड लेबॉर्ट्री मेथड जो इसकी आइडेंटिफिकेशन के हैं वो बेसिकली वो इतने ज़्यादा एडवांस नहीं है। अब जो है एडवांस लेवल की आइडेंटिफिकेशन हमारे पास मौजूद है, लेकिन मोस्टली जो कैंडिडा की दूसरी स्पीशीज़ हैं, स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस से कैंडिडा ऑरिस जो है वो मिस आइडेंटिफाई हो जाता है, विच लीड्स टू द मिस ट्रीटमेंट. It has caused the outbreak in healthcare settings. For this reason, it is important to quickly identify C. auris in a hospitalized patient so that healthcare facilities can take special precautions to stop its spread. If we will talk about the morphology of the Candida auris, first we have to know about the name of the Candida auris, where it comes from. The name of Candida auris comes from the Latin word auris, which mean ear, कान. On growth media, basically it form the smooth, shiny, whitish grey color viscous colonies. और इसके जो सेल्स होते हैं वो एलिप्सॉइड इन शेप होते हैं अगर हम माइक्रोस्कोपिकली इसको देखें. Candida auris can cause the invasive candidiasis, mostly which is known as the fungemia. It includes the bloodstream infections, the central nervous system infection. Internal organs are also infected by the Candida auris, but the main infections are also included, the kidney infections also. Because of अच्छा, इतना ज़्यादा जो है इसकी अटेंशंस क्यों हम लोगों के पास आई हैं? बिकॉज ऑफ द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द कैंडिडा ऑरिस. मल्टी ड्रग, मल्टी एंटी फंगल treatment is also complicated because it is easily misidentified by the other Candida species. ये एक ओवरव्यू है जिसमें जो है बताया गया है कि क्यों एक ऐसी स्पीशीज विच वाज नॉट कॉमन, आज से कुछ साल पहले तक जो कॉमन स्पीशीज नहीं थी वो क्यों इतनी कॉमन होती जा रही है, और इट कैन आल्सो कॉज द आउटब्रेक. The global warming is responsible for raising the ambient climate temperature. अच्छा, कैंडिडा एल्बिकन की ये प्रॉपर्टी है कि वो एक हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में आसानी से ग्रो कर जाता है. ग्लोबल वार्मिंग ने उसकी ग्रोथ
को इसलिए आसान कर दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो कि पहले हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग नहीं थे या पहले हम ह्यूमन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहे होते थे, वो अब जो है उनको क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस मिल रही हैं, दैट्स वाई दे ग्रो एंड कॉज इन्फेक्शंस। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो है बहुत सारी फंगस की स्पीशी को ग्रो करने का मौका मिलता है, जिनमें से एक जो है वो कैंडिडा एल्बिकेंस है, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस एट एवियन एंड मेमेलियन बेसल टेम्परेचर। ठीक है। अब सेकंड जो बात है वो ये है कि कैंडिडा ऑरियस जो है वो प्रीवियसली एक प्लांट के सैप्रोफाइट के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा था और वहाँ से जो है वो थर्मो टॉलरेंस जो है वहाँ से उसने गेन की। दैन इसके बाद क्या हुआ कि सैलिनिटी टॉलरेंस भी वहाँ से उसने गेन की। और दैन इसके बाद क्या हुआ कि इस जो क्लाइमेट का जो इफ़ेक्ट था जब वो चेंज हुआ इकोसिस्टम के हिसाब से, तो इसने जो है वो बहुत सारे दूसरे इन्वायरमेंट में भी यहाँ से जो उसने टॉलरेंस गेन की थी उसके अकॉर्डिंग जो है रहना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ कि बर्ड्स क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट होते हैं, तो वहाँ से फिर बर्ड्स के थ्रू ये डिफरेंट एरियाज़ में ट्रांसप्लांट हुआ और जहाँ पे ये मौजूद नहीं भी था फिर वहाँ पे इसने ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करना शुरू करी। और थर्ड जो है वो इतना ज़्यादा कॉमन अब ये क्यों होता जा रहा है, क्योंकि ह्यूमंस ने जब ट्रैवल करना एक जगह से दूसरी जगह शुरू किया तो थ्रू ह्यूमंस जो है इस ट्रैवलिंग की वजह से ये अब नाउ ये दूसरे हेल्थ केयर एनवायरनमेंट के अंदर भी स्प्रेड हो रहा है। अच्छा, कैंडिडा के जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस है BSIS आर द थर्ड टू द फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज द हेल्थ केयर एसोसिएशन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। ये कैंडिडा एल्बिकेंस की बात हो रही है, कैंडिडा ऑरिस की बात हो रही है। कैंडिडा एल्बिकेंस हैज़ हिस्टोरिकली बीन considered the most pathogenic species in the genus and remains the most common cause of candidemia. In 2009, a new fluconazole-resistant species, Candida auris, was identified in East Asia and has now been isolated on 5 continents. This global emergence has been attributed to the near simultaneous appearance of at least 4 geographically restricted clades, with clonal transmission identified both within and across healthcare facilities. C. auris can be challenging to identify in the clinical laboratory, and this species frequently exhibit multi-drug resistance. Alarmingly, invasive infections have been difficult to treat and are associated with high rate of treatment failure. यानी कि हमारे पास जो है 2009 तक जो है वो ये कंसिडर किया जाता था कि कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो मोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस जो है वो कॉज करता है, कैंडिडीमिया कॉज करता है। इट इज़ द मोस्ट पैथोजेनिक। बट इन 2009 हमें एक ऐसा फ्लूकोनाजोल रेजिस्टेंट स्पीशी फंगस की मिली विच वॉज कैंडिडा ऑल्सो, जो कि ईस्ट एशिया और इसके जो है 5 कॉन्टिनेंट्स में अब तक जो है मौजूद है और पाई गई है। इसके अलावा इसकी इमर्जेंस जो है वो ग्लोबली इसलिए ज़्यादा हो रही है क्योंकि ह्यूमन माइग्रेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह हो रही है और इसकी लैब डायग्नोसिस भी मिमिक हो जाती है, मिसलीड कर जाती है, मिसअंडरस्टैंड हो जाती है, क्योंकि ये कैंडिडा की दूसरी स्पीशी के साथ जो है वो मिसडायग्नोस हो जाता है। Several studies have been conducted to characterize Candida auris virulence determinants. Germination, adherence, biofilm formation, phospholipases and proteinases production all are known to contribute to Candida pathogenesis. Candida auris की जो इम्पोर्टेंस है कि वो इतना ज़्यादा विरुलेंट और पैथोजेनिक क्यों है, इसकी वजह यह है कि एक तो ये इट कैन फॉर्म द बायोफिल्म, इसके अलावा फॉस्फोलाइपेजेस एंड प्रोटीनेजेस की प्रोडक्शन भी जो है कैंडिडा ऑरिस कर रहा होता है, जो कि इसकी पैथोजेनिसिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बट स्टिल किस तरह से ये जो है स्प्रेड कर रहा है बॉडी के अंदर, ये स्टिल जो है अभी कम्प्लीटली जो है इसके बारे में रिसर्च सामने नहीं आ सकी है कि इसकी कंप्लीट पैथोजेनेसिस है क्या। बेसिकली ये एक रिसर्च पेपर है जिसको मैंने जो है जिसका एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पे लगाया है, एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन है इसका।
Comparative evaluation of the pathogenesis of the Candida auris phenotype and the Candida albicans using clinically prevalent murine models of infection. बेसिकली इसमें जो है म्यूरिन को एज अ मॉडल यूज़ किया गया था और कैंडिडा ऑरिस और कैंडिडा एल्बिकन की कंपैरेटिव जो है स्टडी की गई थी, उसकी पैथोजेनेसिस की भी और उनकी जो है फिनोटाइप की भी, और उससे रिलेटेड जो है दैन इसके बाद कुछ रिव्यूज़ थे जो इस पेपर के अंदर दिए गए हैं, जिनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि कैंडिडा ऑरिस जो है वो बायोफिल्म फॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा ये फॉस्फोलाइपेजेस और कुछ स्पेशल किस्म के प्रोटीनेजेस प्रोड्यूस कर रहा होता है जो कि इसकी पैथोजेनेसिस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।